So, welcome back, my dear students. We will continue with the thermodynamics part, and that is what the work done, pressure, volume, type of work. Work in thermodynamics is pressure, volume, type, and for that we have derived a very simple formula. W is equal to minus P external delta V, or what we can use, W is equal to minus P external V2 minus V1 for expansion, और compression होगा तो V1 minus V2 हो जाएगा. So this is what the formula we get, and these are the some conversion factor and units for pressure, volume. So for pressure, 760 mm of Hg is equal to 76 centimeter of Hg, which is equivalent to 180 m. In some numerical, in further discussion, we may use mm of Hg. So 760 mm of Hg is equivalent to 180 m, and 180 m is equal to 101.3 kilopascal, or 101.3 into 10 raised to 3 Pascal. Volume, SI unit is meter cube, but when we take 1 ml is equal to 1 centimeter cube, 1 milliliter is equal to 1 centimeter cube, which is equal to 10 raised to minus 3 liter. So 1 ml is equal to 10 raised to minus 3 liter. 1 liter is equal to 1000 ml. So 1 ml is equal to 10 raised to minus 3 liter. 1 liter is equal to 10 raised to minus 3 meter cube. ये याद रखेंगे दोनों conversion. 1 liter is equal to 10 raised to minus 3 meter cube, and 1 liter is equal to 10 raised is equal to 1 dm cube. वैसे ये तो बहुत simple है. 1 liter is 1 dm cube, and that's why we will use dm cube as the unit of volume. इसी को अगर मीटर क्यूब में करना है तो हम क्या कर लेंगे, 10 raised to minus 3 मीटर क्यूब लिख लेंगे. अब कुछ कन्वर्शन फैक्टर है, ये देखेंगे. एज वी आर डूइंग वर्क डन, तो हमें जूल में या लीटर एटमॉस्फेयर में यूनिट देना होगा. तो 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 22.4 कैलोरीज, which is equal to 101.3 joules, और किलो जूल करना है तो -3 लगा दीजिए आप उसमें. 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल, और 1 जूल इज इक्वल टू 0.239 कैलोरीज. फिर से ml वाली बात आती है. 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, which is equal to 10 raised to minus 3 dm cube. 1 ml is equal to 10 raised to minus 3 dm cube, which is equal to 10 raised to minus 6 meter cube. 1 liter atmosphere, यहाँ भी अभी हमने पढ़ा था. 1 liter atmosphere है ना, 1 liter atmosphere is equal to 101.3 into 10 raised to 3 Pascal. 1 liter atmosphere is equal to 101.3 into 10 raised to 3 Pascal. बेटा एक मिनट, 1 atm लीटर एटमॉस्फेयर में गलत हो रहा था वो. 1 atm 1 atm is equal to 101.3 into 10 raised to
1 atm is equal to 101.3 into 10 raised to 3 Pascal और 101.3 किलो पास्कल रिपीटिशन है और 1 atm is equal to 101.3 into 10 raised to 3 Newton per meter square और 101.3 किलो न्यूटन per meter square. Okay, 1 atm it is. Okay, so these are the few conversion we have to use at times whenever required. Now let us go with this formula of work done. W is equal to minus P external delta V. We will solve simple numerical for W is equal to minus P external delta V. Let us take this numerical. So first numerical, 2 moles of an ideal gas expands isothermally. You know the meaning of isothermal. So isothermally means at constant temperature from a volume of 15.5 liter to 20 liters at constant external pressure of 1 atm. Constant external pressure of 1 atm. Calculate work done. So pressure volume type of work. तो अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो बेटा कैसे सॉल्व करेंगे अब, है ना। पहले तो गिवन क्या क्या है वो हमें पता होना चाहिए और क्या कैलकुलेट करना है। 2 moles of an ideal gas expands isothermally from a volume of 15.5 liter to 20 liter. अब 2 moles का कोई यूज नहीं है। आइसोथर्मल कांस्टेंट टेम्परेचर उसका भी यूज नहीं है, तो एक्सपांशन है V1 is equal to 15.5 liter and V2 is 20 liters against a constant external pressure of P external is 1 atm. रिपोर्ट क्या करना है, वर्क डन W. So W कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट वर्क डन, that is W is what. अब अपने पास में यहां पर फॉर्मूला है W is equal to minus P external delta V और minus P external V2 minus V1. एक्सपांशन है तो फाइनल वॉल्यूम ज्यादा रहेगा और इनिशियल वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो अब सब्स्टिट्यूशन कर दो। अब ये 1 atm, तो ये 1 atm लिख दिया आपने। अब ये कितना है, 20 minus 15.5, तो कितना बचेगा 4.5। तो माइनस ये लीटर होगा इसका यूनिट, तो 1 minus 1 atm into 4.5 liter which is equal to minus 4 liter atmosphere. आ गया W is equal to minus 4.5 liter atmosphere. अब ये वर्क डन को
जूल में कन्वर्ट करना है, वर्क डन इन जूल। तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करें? तो हमारे पास में W इज इक्वल टू -4.5 liter atmosphere. This is what the answer we have. W is equal to -4.5 into 101.3 joule per liter atmosphere. तो इसको भी बेटा यहाँ यूनिट लिख लेते हैं। W is equal to -4.5 liter atmosphere into, ठीक से लिखते हैं, थोड़ा फिर से लिखते हैं। सो वर्क डन इन जूल क्या आ जाएगा? W is equal to -4.5 liter atmosphere into 101.3 joule per liter atmosphere. This is what we get here, 101.3 joule liter atmosphere. अब इसमें लीटर एटमॉस्फेयर कैंसिल हो गया, सो W is equal to -4.5 into 101.3 joule. That comes to be -455, है ना। 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 प्लेसेस शिफ्ट कर दो, -455.8 जूल इज द आंसर, है ना। एक 101 यानी 100 है, 100 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल 2 प्लेसेस शिफ्ट हो गया, तो हमारा आंसर क्या बना यहाँ पर? व्हाट वी गेट 455.8 जूल, और इसका साइन तो माइनस ही रहेगा क्योंकि एक्सपांशन है तो वर्क हमेशा नेगेटिव होगा, हमने साइन कन्वेंशन में देखा था। सो दिस इज व्हाट द न्यूमेरिकल वी हैव सॉल्व्ड, अ वेरी सिंपल टाइप ऑफ न्यूमेरिकल, ना कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला ना कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन। कैसा दिख रहा है अपने को? W इज इक्वल टू -P एक्सटर्नल डेल्टा V, हमने गिवन क्या क्या है वो लिख दिया। सो W इज इक्वल टू -P एक्सटर्नल V2 -V1 सिंस इट इज एन एक्सपेंशन। सो अब कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 atm सब्स्टिट्यूट किया, V2 की वैल्यू 20 लीटर -15.5, वी गेट -4.5 लीटर एटमॉस्फेयर। अब इसी को वर्क डन को जूल में रिपोर्ट करना है, वर्क डन इन जूल क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको वर्क डन इन जूल रिपोर्ट कर रहे हैं। तो -4.5 लीटर एटमॉस्फेयर इंटू 101.3 जूल पर लीटर एटमॉस्फेयर। ओके, तो अब इसको मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई कर लिया, यूनिट देखेंगे यहाँ, ये जूल है और यहाँ पर यूनिट है लीटर एटमॉस्फेयर। सो दिस इज व्हाट द वेरी फर्स्ट न्यूमेरिकल। लेट अस टेक द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। Next numerical says what? Calculate the constant external pressure. Number 2, calculate constant external pressure. तो P external निकालना है अपने को, constant external pressure required to compress, है ना। ये वर्ड इंपॉर्टेंट हो गया, ये प्रोसेस required to compress 1 mole of an ideal gas, 1 mole of an ideal gas from a volume of
a volume of from a volume of 20 liters to 8 liters. Work done the amount of work done is found to be वर्क डन की वैल्यू दिया है, इट इज 44.9 liter atmosphere. So this is what the numerical we have. So calculate constant external pressure. P external हमें calculate करना है. Required to compress. Yes, compress. देखिए मैंने अंडरलाइन कर दिया उसमें, है ना. तो compress का क्या करना है अपने को. V2 माइनस V1 फॉर्मूला तो वही रहेगा, है ना. तो हमारे पास में P external, this is what we have to report. तो given क्या है. Work of compression, W compression is 44.9 liter atmosphere. V1 20 liters and V2 is 8 liters. सही है. फॉर्मूला है हमारे पास में W is equal to minus P external V2 minus V1. जो फॉर्मूला है वैसा ही सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, है ना. V1 माइनस V2 नहीं करने का. माइनस P एक्सटर्नल V2 इज 8, V1 इज 20. P एक्सटर्नल कितना ये हमें कैलकुलेट करना है. What how much is W? 44.9. So 44.9 minus P external minus 12. तो ये क्या हो जाएगा. अब आपके पास में कि P एक्सटर्नल निकालना है आपको, है ना. तो P एक्सटर्नल इंटू 12 लीटर्स. सो 44.9 इंटू 12 लीटर्स. ये आ गया. सो 44 आई एम सो सॉरी इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल, सॉरी माइनस साइन गया, P एक्सटर्नल 12. तो ये P एक्सटर्नल 12 आ गया. तो अब इसमें क्या, P एक्सटर्नल इंटू 12 लीटर्स और P एक्सटर्नल इज इक्वल टू 44.9 लीटर एटमॉस्फेयर अपॉन 12 लीटर्स. तो ये लीटर लीटर कैंसल हो गया यहाँ से. तो क्या बचा, 44.9 अपॉन 12 ATM इज P एक्सटर्नल. अब 44.9 यानी अगर ये 44 होता तो 12 चौक 48 यानी आंसर जो बनेगा देयरफॉर P एक्सटर्नल इज इक्वल टू 3 पॉइंट समथिंग आना चाहिए atmosphere. 3 point, it is coming to be 3.8 atmosphere. So this is the answer. देखिए बहुत easy है न्यूमेरिकल. Compression 1 mole of an ideal gas from initial volume 20 liter. V1 compress किया 8 liter हो गया. Work of compression 44.9 liter atmosphere. So 44 हमने फॉर्मूला क्या यूज किया, W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1. तो W की वैल्यू 44.9 माइनस P एक्सटर्नल V2 कितना है 8, V1 20 है माइनस 12. ये माइनस माइनस प्लस हो गया. तो P एक्सटर्नल
into 12 is what the work done we get, or P external is equal to, है ना, P external is equal to work done upon 12 liters, that comes to be 3.8 liter atmosphere. So this is what the second numerical we get, where we have this P external to be reported, और P external ATM में आ जाएगा. अब एक और न्यूमरिकल देख लेते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग न्यूमरिकल रहेगा. सो इसको मैं इरेज कर दूं, है ना, क्योंकि ये कन्वर्शन फैक्टर ऐसे ही रहने देते हैं अभी. वी विल इरेज दिस. ओके, नाउ after this third numerical number 3, 100 ml of ethylene यानी C2H4 and 100 ml of HCl and 100 ml of HCl. 100 ml of HCl are reacted to produce 200 ml of C2H5Cl. At 2 atmospheric pressure. At 2 atmospheric pressure, calculate pressure volume type of work. तो ये हमें रिपोर्ट करना है, यानी W रिपोर्ट करना है. अब क्या हो रहा है यहाँ पर, रिएक्शन है C2H4 100 ml प्लस HCl, ये भी 100 ml, ये दोनों रिएक्ट करेंगे. C2H4 है बेटा, C2H4 प्लस HCl will give C2H5Cl, ये 200 ml हो गया. करेक्ट है. तो हमारे पास में अब और क्या दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है P external is 2 atm and W हमें रिपोर्ट करना है. करेक्ट है. तो अब इसमें V1 और V2 क्या लेंगे हम, है ना, V1 और V2 क्या लेंगे, है ना. इट विल नॉट प्रोड्यूस, टू प्रोड्यूस C2H5Cl, तो ये तो पूरा वॉल्यूम 0 हो जाएगा. सो 100 ml of ethylene and 100 ml of HCl are reacted to produce ethyl chloride. Ethyl chloride. To produce ethyl chloride at 2 atm pressure. I read again. 100 ml of ethylene and 100 ml of HCl are allowed to reacted to produce ethyl chloride at 2 atm pressure. Calculate the pressure volume type of work. ओके. सो ये इक्वेशन में क्या हो रहा है, C2H4 1 मोल है, ये 100 ml यानी ये 1 मोल है. दिस इज 1 मोल एंड विल प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ C2H5Cl. 1 मोल ऑफ C2H5Cl.
Hence 100 ml of C2H2SO4 reacts with 100 ml. अब ये सब 1 मोल है, तो प्रोडक्ट कितना मिलेगा अपने को? 1 मोल मिल रहा है, यानी ये 100 ml होगा. देखिए क्या लॉजिक हमने लगाया है ना, कि C2H4 1 mole, this react with 1 mole will produce 1 mole of ethyl chloride. If 1 mole of ethyl chloride we are getting, means 100 ml of this, 100 ml of this when combined together will produce 100 ml of C2H5Cl. तो हमारे पास में इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा? इनिशियल वॉल्यूम V1, ये कितना होगा? 100 plus 100, that is 200 ml, which is equal to 0.2 liter. फाइनल वॉल्यूम क्या लिखेंगे हम? फाइनल वॉल्यूम V2 is also 100 ml, which is equal to 0.1 liter. करेक्ट है. एंड ATM P एक्सटर्नल कितना है? 2 ATM. W आपको रिपोर्ट करना है. So W is equal to work done is equal to P external V2 minus V1. P external into V2 minus V1. So minus 2 ATM. V2 कितना है? 0.1 100 ml यानी 0.1 liter. It is 0.1 liter minus 0.2 liter. तो ये क्या हो गया? minus 2 ATM minus 1.1 minus, तो ये हो जाएगा minus 0.1, 0. -1 आ गया ये यहाँ पर. तो अब आपका आंसर क्या बना? -2 into -1 is 0.2 लीटर. ये लीटर था है ना, लीटर ATM. सो W क्या आ गया? 0.2 लीटर ATM. सो वी गेट वर्क डन एज 0. अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा, तो 0.2 लीटर एटमॉस्फेयर. इसी को अगर जूल में करना है तो क्या करेंगे? W इज इक्वल टू 0.2 लीटर एटमॉस्फेयर इंटू 101.3 जूल पर लीटर एटमॉस्फेयर. And work done is equal to 0.2 into 101.3. तो इसका आंसर कितना आ जाना चाहिए? अब ये तो हो गया 6, ये 2, ये 0, ये 2. डेसिमल कहाँ शिफ्ट करेंगे? 2 प्लेसेस के बाद में. तो हमारा आंसर क्या बनेगा? 20.26 जूल. तो ये हमारा आंसर आ गया. वर्क डन पॉजिटिव रहेगा 20.26, और ये भी वर्क पॉजिटिव है 0.2 लीटर एटमॉस्फेयर. क्योंकि V1 कितना है? 200 और V2 कितना है? 100, यानी यहाँ पर कॉम्प्रेशन हो रहा है. सो दिस इज व्हाट द थर्ड न्यूमेरिकल वी हैव. देखो सब में थोड़ा कुछ चेंज आते जा रहा है, एंड दिस इज समथिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल. आप ध्यान में रखेंगे इसको कि किस तरह से हमें उसका वॉल्यूम को कैलकुलेट कर लिया हमने. सही है. नाउ व्हाट वी डू, वी टेक अनदर न्यूमेरिकल नंबर 4, और ये थोड़ा हटके रहेगा. न्यूमेरिकल नंबर 4, लेट अस सी दिस न्यूमेरिकल number 4. An ideal, number 4 numerical, an ideal gas expands from
25 decimeter cube dm cube against an external pressure of 4.6 into 10 raised to 5 Newton per meter square, and perform work of 3.085 into 10 raised to 4 joules. Calculate the final volume. Calculate the final volume. करेक्ट है? एक बार रीड करते हैं न्यूमेरिकल को. An ideal gas expands from 25 decimeter cube against an external pressure of 4.6 into 10 raised to 5 Newton per meter square. अब ये पढ़ रहे हैं, यहाँ डेसीमीटर है और यहाँ मीटर है, तो हमें ये डेसीमीटर को भी मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा. ये सबसे पहला पॉइंट क्लिक होना चाहिए. एंड परफॉर्म वर्क ऑफ 3.085 into 10 raised to 4 joules. अब अगर हमने ये डेसीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से क्या मिलेगा कि ये डेसीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो 10 raised to -3 हमें यूज करना पड़ेगा. तो an ideal gas expands from V1 कितना है 25 dm क्यूब, इसी को कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में, तो आप क्या करेंगे 25 into 10 raised to -3 मीटर क्यूब. ओके, 10 raised to -3 मीटर क्यूब. अब ये -3 है, तो इसी को आप क्या लिख सकते हैं, 3 प्लेसेस लेफ्ट में जाएंगे, 0.025 मीटर क्यूब. 0.025 मीटर क्यूब. प्रेशर कितना दिया है 4.6 into 10 raised to 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. अब ये भी मीटर में है, यहाँ भी वॉल्यूम मीटर में है. एंड परफॉर्म वर्क ऑफ, अब वर्क डन जो दिया है दैट इज 3.085 into 10 raised to 4 joules. तो ये यूनिट जूल्स में हमें चल जाएगा. करेक्ट है? अब हमारा फॉर्मूला क्या बनता है? व्हाट इज द फॉर्मूला? W is equal to minus P external V2 minus V1. P external V2 minus V1. Let us substitute. W कितना दिया हुआ है? W has been given and it is 3.085 into 10 raised to 4, which is equal to minus P external minus 4.6 into 10 raised to 5 into V2 minus V1. V2 हमें रिपोर्ट करना है. करेक्ट है? कैलकुलेट द फाइनल वॉल्यूम. V2 हमें रिपोर्ट करना है. V2 माइनस V1 कितना है? 0.025 मीटर क्यूब. ओके, चलिए जी, अब क्या करें, हम इसको इतने सिंपल तरीके से वैसे ही सॉल्व कर लें. तो V2 minus 0.025 is equal to 3.085 into 10 raised to 4 upon 4.6 into 10 raised to 5. अब ये
V2 माइनस V1, करेक्ट है। तो हमें मिल गया। अब वर्क डन क्या है बेटा, ये एक्सपांशन है। तो ये जो W हम लिखेंगे, ये W को क्या करना पड़ेगा, एक्सपांशन है तो ये -3 पॉइंट करना पड़ेगा, है ना, -3.085। तो ये भी एक फंडा है जो हमको ध्यान में रखना है। कॉम्प्रेशन होता तो वर्क पॉजिटिव आता, इट इज अ वर्क ऑफ एक्सपांशन। तो 3.085 इंटू 10⁴ को हमने क्या किया, -3.085 इंटू 10⁴ जूल। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो V2 माइनस 0.025 इज इक्वल टू, तो इसे कैलकुलेट करेंगे हम। तो व्हाट वी गेट हियर इज, आंसर जो मिलेगा हमको 0.6707 इंटू 10⁻⁻1 एंड लीटर्स में, सॉरी मीटर क्यूब में, वॉल्यूम इज इन मीटर क्यूब। और ये 10⁻⁻1 है, एक प्लेस और लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा, 0.06707 मीटर क्यूब। तो ये V2 का आंसर आ गया आपके पास में, सही है। तो फाइनली वी गेट V2 इज इक्वल टू, ओ नो, ये अच्छा, एक मिनट, इसको कैलकुलेट करेंगे हम। तो 3.085 divided by 4.6, that comes to be 0.6707 into 10⁻⁻1। ये 10⁻⁻1 ये आ गया हमारा V2 माइनस 0.025 इज इक्वल टू दिस मच। ओके, अब क्या करना होगा इसका हमको, हमने इसमें क्या क्या यूनिट लगाया था, यहाँ जूल था, वर्क डन में जूल था यूनिट, और इसमें था मीटर क्यूब। ओके, सो नो प्रॉब्लम्स, वी कैन सॉल्व दिस फर्दर। सो अब V2 निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, therefore V2 is equal to 0.06707। तो V2 is equal to 0.06707 प्लस, इधर लेके आ गए, प्लस 0.025। तो फाइनली V2 कितना लिख देंगे बेटा, V2 इज इक्वल टू 0.09207 मीटर क्यूब, और रहने दीजिए इसको, ये आंसर V2 इज इक्वल टू 0.0927, तो 0.06707 प्लस 025, 0 7 5 12 2 8 1 9, और ये 0 पॉइंट। तो अपना आंसर बना 0.09207 मीटर क्यूब। सो दिस इज द फाइनल वॉल्यूम वी गेट। तो ये न्यूमेरिकल में क्या क्या किया हमने, है ना। चलिए जरा इस न्यूमेरिकल को समझ लेते हैं ठीक से। सो व्हाट इज द न्यूमेरिकल, मैंने कहा ना थोड़ा इंटरेस्टिंग है। एन आइडियल गैस एक्सपांड्स फ्रॉम 25 dm³ against an external pressure of 4.6 into 10⁵ Newton per meter square and perform a work of expansion 3.085 into 10⁴ joule. Calculate the final volume. V2 निकालना है। तो इनिशियल वॉल्यूम 25 dm³। अब हमने आपसे कहा था कि ये प्रेशर दिया है मीटर में,
मीटर में और वॉल्यूम दिया है डीएम क्यूब में। तो हमें इसको डीएम क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो डेसीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करने है मीटर क्यूब में 10⁻³ that becomes 0.025 मीटर क्यूब। पास प्रेशर दिया है 4.6 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हमें W भी दिया हुआ है, लेकिन W में हमको हैशटैग क्यों लगा दिए? क्योंकि ये वर्क ऑफ एक्सपांशन है, तो यहाँ पर ये माइनस साइन आना चाहिए। -3.085 into 10⁴ जूल इज द वर्क डन। अब सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला क्या है? W is equal to -P external V2 minus V1 और V2 रिपोर्ट करना है। चलिए W का सब्स्टिट्यूशन किया, -3.085 into 10⁴ is equal to प्रेशर कितना है? P external -4.6 V2 minus V1, V2 रिपोर्ट करना है, V1 की वैल्यू 0.25। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये कैलकुलेशन का आंसर कितना बना? 0.06707 is what? V2 minus 0.025। अब यहां से V2 निकाल लो, तो करना क्या रहेगा? Therefore V2 is equal to 0.0670 plus 0.025। तो फाइनली आपका ये V2 का आंसर आ गया 0.9207 into मीटर क्यूब। तो बेटा ये 4 न्यूमेरिकल हमने कर लिए है ना, और ये न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आप करेंगे। मैं कुछ असाइनमेंट दूंगा आप लोगों को, एंड वी विल solve further those numerical and see you in the next class. Thank you so much.